In question number 84, MV hinge ship is in condition number 3. So let's try to understand the question first. So initial condition. Is condition number 3. That's our initial condition. And in this initial condition, she is listed 3 degrees to starboard. So list is 3 degrees to starboard. It is desired to increase her trim to 3 meters by stern. That means इस condition number 3 की कुछ initial trim भी है जो हमें वहां से मिल जाएगी कंडीशन से, तो उसकी कुछ एक ट्रिम है. And it is desired to increase her trim to 3 meters by stern. So final condition. Final trim should be 3 meters by stern. And to bring her upright, so list for the final condition should be 0 because we have to make it upright. And this has to be done only by transferring of water ballast. And the transfer must happen, water ballast. Transfer must happen of the water ballast from 2 dB to 4 dB port and starboard. So dBT to port starboard to dBT 4 port starboard ट्रांसफर करेंगे. इसका मतलब जो मेरी कंडीशन नंबर 3 की डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी फाइनल कंडीशन की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, बिकॉज मैं खाली ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं कोई लोडिंग नहीं कर रहा हूं. तो displacement remains constant. Okay. And there is one more condition with number 4 port filled to capacity. So final condition में DBT 4 port must be full. Assume the center of gravity of number 2 and number 4 port and starboard to be 6.7 meters from the center line. Okay. So let us now draw a bird's eye view. So this is a bird's eye view. This is 2 port. This is 2 starboard. And this is 4 port. This is 4 starboard. All right. This is forward and aft. Okay. So ये 2 port है, ये 2 starboard है, ये 4 port है, ये 4 starboard है. ओके. अब सबसे पहले तो मेरे को इनिशियल कंडीशन का इनिशियल डेटा चाहिए. तो सबसे पहले मैं कंडीशन नंबर 3 में घुसता हूं और W इनिशियल निकाल लेता हूं. तो वो W इनिशियल मुझे मिलता. हाँ जी बोलिए. 7087.3 टन. ये मेरे को कंडीशन नंबर 3 की डिस्प्लेसमेंट मिल गई. फिर इसी इनिशियल कंडीशन की मैं MCTC भी ले लेता हूं. वो भी मुझे कंडीशन से मिलेगी. $156.7. और इसी कंडीशन से मैं GM फ्लूइड भी निकाल लेता हूं. वो मेरा है 2.586 मीटर. ये मुझे सब कुछ कंडीशन नंबर 3 से मिल रहा है. और मेरी इनिशियल ट्रिम जो है कंडीशन नंबर 3 की वो भी मुझे मिल गई 2.406 टन.
ये मेरी इनिशियल ट्रिम है। फाइनल ट्रिम मुझे 3 मीटर टर्न चाहिए, यानी कि मुझे ट्रिम को ज्यादा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रिम से स्टार्ट करता हूं, और ट्रिम ओनली। तो पहले मैं ट्रिम से शुरू कर रहा हूं। इनिशियल ट्रिम मेरी 2.406 मीटर है। स्टर्न। फाइनल ट्रिम मेरी 3 मीटर है। स्टर्न। इसका मतलब है ट्रिम कॉस्ड या टोटल चेंज इन ट्रिम इज 0.594 594. meters stern. Is this okay with everyone? Yes, sir. Convert this to centimeter. 59.4 centimeters stern. But I know TC is equal to trimming moment upon MCTC. Therefore, trimming moment will be equal to 59.4 into 156.7. Find out the trimming moment caused. 9307 decimal 98. 9307 decimal 8. So many ton meter. 98, sir. 98. Okay. 98. So many ton meter by stern is the trimming moment caused. Now, obviously, this trimming moment which is caused is due to the transfer of weight from forward to aft. So I know trimming moment is equal to W into D. So trimming moment is W into D is equal to 9307.98. W is the weight that I'm shifting from 2 wings to 4 wings, from forward to aft. D is the distance through which I am moving this weight. I'm moving this weight like this. So D will be the difference of the two LCGs. So LCG of DBT2 minus LCG of DBT4. So now you go to the capacities table in your Hinship particulars. Go to capacities table and look for water ballast tank. Look for DBT 2 का LCG and 4 का LCG. Please remember, you have to go into the water ballast tank, not the heavy oil tank. So दोनों का difference 44.06. So 102.20 minus 58.14. 58.14 is equal to 44.06 is the D. So W will be equal to 9307.98 divided by 44.06. सर ये जो कंडीशंस में सर
एलसीजी जो दिए होती हैं वो हम्म। हमेशा सेम ही रहेंगी सर कैपेसिटी टेबल से, कि कुछ चेंजेस भी रहेंगे कंडीशन वाले? कंडीशन वाली कैपेसिटी, मैं जनरली कैपेसिटीज में घुसना चाहता हूँ, मैं कंडीशन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि समाव कुछ कोई ऐसी जो सर कंडीशन हो। नहीं दिए, जो सर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ तो कैपेसिटी वर्ड से ले लेते हैं। किसी किसी कंडीशन में पूरा दिया हुआ है तो वहां से उठाना बेहतर रहेगा कि कैपेसिटी टेबल सही रहेगा? सी कैपेसिटीज में जाओगे तो कभी गलत नहीं होगे। आई थिंक ओके सर, दैट इज द आई रीजन थिंक वाई सेम ही होना चाहिए सर, अदरवाइज। सेम ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपके कंडीशन नंबर 3 में, नंबर 4 में बैलेस्ट में कुछ है ही नहीं, तो फिर वहां पे एलसीजी आपको दी नहीं होगी, फिर आपको जाना ही पड़ेगा हाँ कैपेसिटी सर, टेबल में। यस सर, तो फिर एक बारी कैपेसिटीज में ही चले जाओ, यू नो, यस दैट वे। क्योंकि नंबर 4 के लिए तो आपको जाओगे ही जाओगे, यस सर। तो यू माइट एज वेल गो देयर फॉर नंबर 2 आल्सो, सेम पेज, दैट वे। सर ये करता कि किसी किसी कंडीशन में सारी डेटा, जैसे कि सारे टाइम्स के डेटा दिए गए हैं, तो उस हाँ, केस में हमें कंडीशन का यूज करना है कि कैपेसिटी का भी यूज कर सकते हैं? दोनों यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर ओके सकते सर, हो, they would, ओके they सर। would be the same, yeah. So this W will come as equal to 211.26, यानी कि अगर मैं 211 टन, 0.26 टन फॉरवर्ड से आफ्ट शिफ्ट करता हूं, तो मेरी ट्रिम ओके हो जाती है। सो माय ट्रिम इज टेकन केयर ऑफ नाउ। नाउ आई हैव टू शिफ्ट टू द लिस्ट। सो अब मैं लिस्ट पे आ रहा हूं। सो ट्रिम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो अब मैं लिस्ट में आ रहा हूं। तो फॉर द लिस्ट ओनली, ऑलराइट, मेरे जहाज की इनिशियल लिस्ट है। सो मेरा फॉर्मूला जो है वो है tan लिस्ट या tan थीटा इज इक्वल टू GG1 अपॉन GM फ्लूइड इज इक्वल टू W1 इंटू D1 अपॉन W GM फ्लूइड। तो ये मेरे सेकेंड मेट्स के बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं। W1 into D1 is also called as listing moment. So initial listing moment ILM upon W into GM fluid. So मेरे जहाज की 3 डिग्री स्टारबोर्ड लिस्ट है। So tan 3 is equal to ILM initial listing moment upon W that is 7087.3 into GM fluid that is 2.586. Cross multiply and get initial listing moment. Cross multiply and get the initial listing moment.
So, sir, 886.241. 886.241. So this you're doing tan 3. सर ये नहीं आएगा 960517 960517 है सर 960 .517 भाई चेक करो जरा सब लोग tan 3 into 7087.3 into 2.586. यस सर 960.517 All right. So ये मैं क्योंकि स्टारबर्ड लिस्ट है मेरे जहाज की तो ये मेरा लिस्टिंग मोमेंट टू स्टारबर्ड है. नाउ मेरा जहाज इस वक्त जो है स्टारबर्ड लिस्ट में है. अगर मुझे जहाज को अपराइट करना है तो मेरे को इतना ही लिस्टिंग मोमेंट टू पोर्ट देना पड़ेगा. एग्रीड. Therefore, final listing moment should be equal to 960.5.7 to port. Do you agree to this? Then my vessel will become upright. Agreed on this? For vessel to become upright? Yes, sir. Now this listing moment is nothing but W1 into D1 is equal to 960.517 to port. The weight that I'm shifting from starboard to port and the distance through which I'm shifting. Now, the distance, the center of the CG is 6.7 meters from the center. This is also given as 6.7. So when I shift some weight from starboard to port, I'm shifting her through a distance of twice into 6.7. Do you agree to that? Yes. So W1 into twice into 6.7 will be equal to 960.517. So calculate W1. So 71.680. 71.680. So many tons I'm going to be shifting. Since I need to correct my list from starboard to port, so quite obviously I am going to be transferring this weight from 2 starboard to 4 port. Agreed on this or no? So this will go from 2 starboard to 4 port because मुझे लिस्ट को करेक्ट करना है. Simultaneously, this 71.68 will be a part of 211.26 because मुझे my is forward to aft also. Agreed? सर ये 2 टाइम्स वाला एक बार फिर से बताओगे. मेरे को मेरी जहाज की स्टारबोर्ड लिस्ट थी. मुझे इसको जहाज को ऑपरेट करना है तो मुझे वेट को स्टारबोर्ड से पोर्ट पे लेके जाना है. एक टैंक 6.7 सेंटीमीटर्स 6.7 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर लाइन है तो टोटल डिस्टेंस जो मैं स्टारबोर्ड टू पोर्ट शिफ्ट करूंगा will be 6.7 on the starboard side and 6.7 on the port side. So
So 6.7 plus 6.7. Agreed? Okay, sir, got it. So twice into 6.7 कर दिया उसको. This 71.68 quite obviously will go from 2 starboard to 4 port and will be a part of 211 tons. 211 टन का ये हिस्सा होगा लार्जर पिक्चर में. ठीक है. अब जब मैंने 71 टन्स को 2 स्टारबोर्ड से 4 पोर्ट किया तो मेरी लिस्ट ओके हो गई. My list has become okay. My vessel is upright now. Agreed? Yes, sir. Okay. So अब मैं खाली upright को मेंटेन करूंगा. So balance to transfer. पर सर उसने बोला है 4 पोर्ट फुल टर्न है तो उसमें और अभी भी रुक जाओ. मैं अभी आगे मत भागो. अभी रुक जाओ. Balance to transfer from forward to aft will be 211.26 minus 71.68. This will be the balance to transfer from forward to aft. Agreed? क्योंकि 71 मैं कर चुका हूं. ठीक है, सर. So the balance to transfer from forward to aft will be how much? $139.58. 131. अब मेरे को इतने टन को फॉरवर्ड टू आफ्ट शिफ्ट करना है. तो अब जो भी मैं शिफ्टिंग करूंगा, क्योंकि मेरा जहाज अपराइट हो चुका है, तो मैं 2 पोर्ट टू 4 पोर्ट करूंगा. तो मेरी लिस्ट कुछ नहीं होगी. और मैं 2 स्टारबोर्ड टू 4 स्टारबोर्ड करूंगा तो भी मेरी कोई लिस्ट नहीं होगी. लिस्ट तभी होगी जब मैं अक्रॉस करूंगा. बट मैं खाली अब पोर्ट टू पोर्ट करूंगा शिफ्ट, तो मेरी लिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इज दैट ओके विद एवरीवन? Yes, sir. ओके. तो अब मैं आता हूं. What is the maximum 4 port can receive? Max capacity of 4 port कितनी है? तो फिर से जाओगे कैपेसिटी टेबल में. 120. सर 130.585 मीट्रिक टन. अब आपको बड़ी 130.585. केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे वो क्यूबिक कैपेसिटी दी हुई होगी. उसको मल्टीप्लाई बाय 1.025 करोगे, डेंसिटी इन विच शी इज फ्लोटिंग, और तब आपको उसकी टनेज मिलेगी. तो फुल कैपेसिटी ऑफ 4 पोर्ट विल बी, जो क्यूबिक्स दी हुई है 127.4 into 1.025. This is equal to 130.59. ये मैक्स कैपेसिटी ऑफ 4 पोर्ट है. लेकिन आप तो 71 टन ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो. सो बैलेंस 4 पोर्ट कैन रिसीव will be 130.59 minus 71.68. 58.9. 58.91. 58.91. Balance 4 port can receive to become full. So quite obviously ये 58.9 tons 2 port से आएगा. So therefore 2 port to 4 port will be equal to
58.91 टन। एंड मेरे लिस्ट की कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं खाली पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ। एग्रीड? तो 58.91 मेरा 2 पोर्ट से 4 पोर्ट में चला गया। अब मेरा 4 पोर्ट फुल हो चुका है। Quite obviously, this 58.91 is also a part of 211। तो लास्ट मेरा जो फॉरवर्ड टू आफ्ट ट्रांसफर जो बचा था वो 139.58 था। सो बैलेंस टू ट्रांसफर from forward to aft is equal to 139.58 minus 58.91 is equal to 80.67। 80.67। क्वाइट ऑब्वियसली ये जो मेरा ट्रांसफर होगा 2 स्टारबोर्ड टू 4 स्टारबोर्ड होगा। ये 2 स्टारबोर्ड 80.67। ये 80.67 2 स्टारबोर्ड टू 4 स्टारबोर्ड चला गया। अब मेरा जहाज अपराइट भी है और मेरा ट्रिम ओके भी है और मेरा 4 पोर्ट फुल भी है। अब मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। 58.91 प्लस 71.68 प्लस 80.67 टोटल करता हूं, इतना आना चाहिए। ये मेरा क्रॉस चेक हो रहा है। सर वो 80 वाला दोबारा बता देंगे, तो उसमें कंफ्यूजन हो गया। जो 211 में से पहले हमने 71.68 निकाला तो मेरा बैलेंस टू ट्रांसफर फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट 139 टन था। अब 139 में से मैंने 58 भी ट्रांसफर कर दिया तो मेरा बैलेंस टू ट्रांसफर 80 टन हो गया। मेरी लिस्ट तो अपराइट है तो देयरफॉर अब जो भी मैं ट्रांसफर करूंगा वो 2 स्टारबोर्ड टू 4 स्टारबोर्ड ही करूंगा। स्टारबोर्ड टू स्टारबोर्ड कर रहा हूं खाली, तो मेरी लिस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, मैं अपराइट ही रहूंगा। तो 80 टन जो है मैं 2 स्टारबोर्ड से 4 स्टारबोर्ड लेके जा रहा हूं। सर हाँ जी सर, इसको अगर सर ऐसे करें अगर सर तो सर पहले अपन ने 71.68 अपन ने सर लिया इसमें 4 पोर्ट में फॉर द लिस्ट करेक्शन फ्रॉम Correct. 2 स्टारबोर्ड से। ठीक उसके है। बाद सर अपना जो 4 स्टारबोर्ड टैंक है ना सर, ये भी एम्प्टी है। तो इसमें सर अपन ये 2 स्टारबोर्ड से 4 स्टारबोर्ड की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 130.5। वो मतलब सारा मतलब कर दें फिल, तो उसका एफएससी भी मतलब खत्म हो जाएगा, भाई वरना फिर मेरे चारों टैंक से आप अरे ब्लैक अरे रहेंगे। भाई अरे भाई बात सुनो, तुम क्वेश्चन को बदल तो नहीं सकते। वही नहीं क्वेश्चन तो तुम्हारे को कह रहा है 4 पोर्ट फुल करो, तुम कहते हो नहीं मैं 4 स्टारबोर्ड करूंगा। अच्छा ऐसा बोला है क्या सर?
ओके सर। क्वेश्चन मेंशन्ड है। तुम क्वेश्चन को तो मत बदलो ना प्लीज। ठीक है सर। वो तो एमएमडी के पास रहने दो, इतनी पावर तो। ओके सर। तुम तो फ्री सरफेस पे चले गए, तुम तो पता नहीं कहाँ लेके चले गए उसको। सी यू टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब हम लोडेड कंडीशन में सेल आउट करते हैं ना, नॉर्मल वेसल, एनी कार्गो वेसल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। when I'm loaded, okay, फुल ड्रग डिस्प्लेसमेंट है मेरी, और केजी भी अच्छी खासी है, और मैं फुल लोड पे हूँ, तो मेरे को ना जीएम की कोई तकलीफ नहीं है कार्गो शिप में। GM is never an issue for me. Okay, GM becomes an issue only in 2 or 3 cases. 1, grain. 2, timber. Okay. 3, passenger ships. 4, ro-ro. And 5, container ships. These vessels में GM का थोड़ा सा issue आता है, where I need to be careful. But if I'm on a tanker, if I'm on a bulk carrier, if I'm on a general cargo, जनरली मैं लोडेड कंडीशन में ना मेरी केजी बहुत अच्छी होती है, एंड देयरफॉर मेरी जीएम भी अच्छी होती है, राइट। तो मेरा मकसद होता है ट्रिम भी मीट करे, और मेरा लिस्ट भी अपराइट होनी चाहिए मुझे जब मैं डिपार्चर पोर्ट करूं। ये मेरा मकसद है, प्राइमरी एम, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भैया जहां अराइवल पोर्ट जहां मैंने कार्गो लाना है ना, उसके ड्राफ्ट को मैं मीट करूं। तो मैंने अगर उसको मीट कर लिया तो मैंने बहुत महान कार्य कर लिया। तो मेरा मकसद वो है, फ्री सरफेस मेरा मकसद है ही नहीं लोडेड कंडीशन में। इज इट ओके? यस। तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो अभी इतना ज्यादा मत करो अभी। पहले प्रॉब्लम जो हमारे को दी हुई है वही समस्या वाली है, उसी पे ध्यान देते हैं। तो 2 स्टारबोर्ड टू 4 स्टारबोर्ड मैंने मूव किया 80.67 एंड आई एम ओके। अब मैं इन तीनों को टोटल करता हूं, ये आएगा, ये तीनों को टोटल करता हूं, ये आएगा, इसका मतलब है आई एम ओके। लास्ट पार्ट, आरओबी टेबल। बिकॉज ये मुझसे पूछा गया है। नंबर 2, नंबर 4, पोर्ट स्टारबोर्ड। अब शुरू हो जाओ, टू पोर्ट। अब इनिशियल कंडीशन में जाओ, देखो टू पोर्ट में कितना पानी था। कंडीशन में जाओ, 207.5 सर, 207.45 था। ये दो टुगेदर था या जी सर, अलग अलग अलग? इसमें मतलब हाँ सर। तो ये टन्स में है कि क्यूबिक मीटर है? सर टन्स में। इसमें से 58.91 माइनस कर दो, कितना बचा? तो 152.35। ये समझ में आया हमने क्या किया? सर 58 माइनस का ना 55। 58.91 था ना? ओके आई होप तुमने ठीक किया माइनस। जो टू पोर्ट की मैक्स कैपेसिटी थी उसमें से 58.91 माइनस कर दो, वो कितना तो आता है? 148.5 आएगा। 148.54। 148.54। ये समझ में आया हमने क्या किया है? इज दिस ओके विद एवरीवन? ये समझ में आया क्या किया हमने?
स्टारबोर्ड में जा रहा हूँ, फिर 2 स्टारबोर्ड की मैक्स कैपेसिटी आपको पता है, तो उसमें से 71.68 माइनस करो और फिर 80.67 भी माइनस करो, बैलेंस क्या आता है? तो बैलेंस आता है 55.1। ये समझ में आया क्या किया हमने? Is this okay with everyone? ये 2 पोर्ट और 2 स्टारबोर्ड का आरओबी है। आफ्टर वी हैव कैरिड आउट द ऑपरेशन इन द फाइनल कंडीशन, हम उसका आरओबी निकाल रहे हैं क्योंकि वही हमसे पूछा गया है। अच्छा, 4 पोर्ट फुल है, 4 पोर्ट फुल है, 130.59। एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. यस सर, ओके। यस सर। अब 4 स्टारबोर्ड में इनिशियल कंडीशन में जाओ और चेक करो कोई इनिशियल कंडीशन में कुछ पानी तो नहीं था उसमें? इसे खाली था, खाली खाली नहीं था। था सर, खाली था। अगर सपोजिंग उसमें 10 टन होता तो उसमें ऐड कर दे। तो इसमें आप ऐड करते। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए 80.67। समझ में आ गया ये क्या किया मैंने? दिस इज योर फाइनल आरओबी, क्योंकि वो खाली था। अगर 10 टन होता तो 90 हो जाता। ओके सर। ऑल राइट, हाँ जी, अब डाउट्स पूछो। Now the doubts. Okay, let me repeat the whole question once again. We initially had a list to starboard. We wanted to make the vessel upright and also have the 4-port tank full and have a trim of 3 meters by stern. So initially what we did, पहले हम trim के लिए चले खाली और हमने निकाला कि ट्रिम कॉस्ड जो है वो 59.4 सेंटीमीटर आती है, उससे हमने ट्रिमिंग मोमेंट निकाल ली और उससे हमने W निकाल लिया कि कितना टोटल वेट आगे से पीछे ट्रांसफर करें, वो आया हमारा 211 टन। फिर हमने लिस्ट को पहले करेक्ट किया, तो कितना लिस्टिंग मोमेंट इनिशियली था उतना ही लिस्टिंग मोमेंट टू ऑपोजिट साइड मुझे फाइनल में चाहिए, तब मैं अपराइट हो जाऊंगा। तो देयरफॉर उससे हमने W1 निकाला, वो W1 आया 71 टन। तो क्वाइट ऑब्वियसली ये 71 टन हमने 2 स्टारबोर्ड से 4 पोर्ट में ट्रांसफर किया। Quite obviously 71 tons is a part of 211 tons. So balance to transfer from forward to aft becomes 211 minus 71, that is 139 tons. अब जहाज अपराइट हो चुका है, अब जो भी ट्रांसफर होगा 2 पोर्ट टू 4 पोर्ट होगा और 2 स्टारबोर्ड टू 4 स्टारबोर्ड होगा, एंड लिस्ट विल बी अपराइट ओनली, जीरो लिस्ट होगी, जहाज अपराइट रहेगा। अब तो हमने मैक्सिमम कैपेसिटी 4 पोर्ट की निकाली, वो आई 130 टन। 71 हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके थे, तो बैलेंस बचा 58 टन। तो ये 58 हम ट्रांसफर करेंगे 2 पोर्ट टू 4 पोर्ट, वो हमने कर दिया। अब ये 58 भी फॉरवर्ड टू आफ्ट वाले का पार्सल है, तो बैलेंस टू ट्रांसफर फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट बिकम्स 80 टन। So this 80 will be transferred from 2 starboard to 4 starboard. And now the trim is also okay. The list was already okay and we were maintaining it. And finally ROBs का टेबल बनाया
हाउ मच इज द एक्चुअल कैपेसिटी, जो इनिशियल थी उसमें से ये माइनसेस किए जो हमने ट्रांसफर किए हैं, ये हमारा फाइनल आरओबी बनता है. दैट इज द होल क्वेश्चन. In practical also, in actual on board also we do the same thing. पहले हम लिस्ट को ओके कर देते हैं जहाज के, और फिर पोर्ट टू पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड टू स्टार्बोर्ड ट्रांसफर करते हैं जो भी बैलेंस. सो इन रियलिटी अगर आप कभी भी लाइक यू somebody was saying कि फ्री सरफेस, अगर मुझे फ्री सरफेस को मिनिमाइज करना है तो मैं पोर्ट टू पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड टू स्टार्बोर्ड कर दूं, दैट्स ओके. सो ये बहुत बार आपको इंजीनियर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बंकर्स करते हैं तो उस वक्त वो लिस्ट का कॉन्सेप्ट गोल हो जाता है उनका पूरा, वो ले लेते हैं. तो इसलिए आपको उनको बताना पड़ता है कि भैया जब करोगे एक बारी जहाज को ऑपरेट कर दो, उसके बाद में पोर्ट टू पोर्ट और स्टार्बोर्ड टू स्टार्बोर्ड ही करो बस. ये उनको बताना पड़ता है आपको, इंजीनियर्स को. ऑलराइट, इज इट ओके? ये जो एथॉर्डशिप सीजी की वैल्यू दी थी 6.7, ये हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, हमको गिवन होगा? ये क्वेश्चन में दी होगी. ओके, ये क्वेश्चन में दी होगी, इसके बिना तो आप कर नहीं पाओगे. अगर नहीं दी होगी तो फिर आपको वो जनरल अरेंजमेंट प्लान में जाके जीए के डायग्राम में निकाल के सेंटर, उसका डायगोनल का सेंटर लेके वो मेजर करना पड़ेगा उस स्केल पे. ओके सर. बट दी हुई होनी चाहिए. ओके सर.